خدا کے فضل سے آج کرسچن ٹاکس میں ہمیں پاسٹر کاشف چاند ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کے درمیان آ کے مجھے دلی خوشی ہے اور آپ کے مدعو کرنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پریز دی لارڈ. تو سر آج ہم سیکھیں گے نوجوان اور خاندانی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول نوجوان کی زندگی پر کیسا اثر کرتا ہے اور اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک نوجوان اور اس کی خاندانی ذمہ داریوں کے تعلق سے بات کی جائے. یس. اور آپ نے ترتیب بڑی اچھی بنائی ہے جب آپ نے کہا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک نوجوان کے رویے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس چناؤ کا رائٹ ہے، وہ اپنے لیے اچھا چناؤ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے. اگر آپ اچھی صحبت چنتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی زندگی پر اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کا چناؤ اس طرح سے ہے کہ آپ برے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ برے ہوتے ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، خاندان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے پاس چناؤ کا کوئی موقع نہیں ہوتا. اس لیے جس خاندان میں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اب والدین ہی کے پاس یہ چناؤ ہوتا ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کریں اور اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں پروان چڑھنے کا موقع دیں جس سے جو خدا نے ان کی زندگی میں، ان کی ذات میں، ان کی نیچر میں جو خوبیاں رکھی ہیں وہ پروان چڑھ سکیں. اور اگر والدین اس طرح کا خاندان میں ماحول بچوں کو فراہم کر دیں تو بچے وہ بہت ترقی کرتے ہیں. لیکن اگر خاندان میں بچے کو ماحول اس طرح سے ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ان کی بات چیت میں کڑواہٹ نظر آتی ہے، تلخی نظر آتی ہے، تو اس کے اثرات بچے پہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بھی جب نہ صرف اپنے ہم عمر جب وہ بات چیت کرنا شروع کرے گا تو نہ صرف اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ، کبھی کبھی اس کی جھلک والدین کے ساتھ اس کی بات چیت میں بھی نظر آئے گی. جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا والدین حیران ہوں گے کہ یہ بچے کی زندگی میں ہمارے ساتھ جو بات چیت کا رویہ ہے یہ اتنا تلخ کیوں ہے. وہ جان نہیں پائیں گے جب تک ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ اس لیے ہے چونکہ بچے کے سامنے ہمارا آپس کا رویہ اچھا نہیں رہا. جب تک ان کو سمجھ آئے گی بچے کی عادت وہ اتنی پختہ ہو چکی ہوگی کہ وہ کوشش سے بھی پھر بچے کی ہیلپ وہ نہیں کر سکتے. اور جب بچے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اب میری زندگی میں یہ جو باتیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں، اس کو بھی مشکل ہوگی کہ اب ان باتوں کو اپنی زندگی سے نکال سکے. تو ابھی اس کے پاس ایک اپرچونٹی تو ضرور ہوتی ہے. اس لیے بنیادی بات یہی ہے کہ جو خاندان ہے وہ اپنے بچوں کو خاندان میں اچھا ماحول دے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ خاندانوں میں جھگڑے اس طرح سے طول پکڑتے ہیں کہ وہ طلاق کی باتیں کرتے ہیں. اور جن خاندانوں میں طلاق ہوتی ہے وہ جو اس خاندان کے بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ، نہ مستقبل میں ازدواج میں وہ اس قدر زیادہ اچھا وہ رویہ اپنا پاتے ہیں جس میں بڑی وفاداری اور بھروسے کا عنصر نظر آئے. اکثر نوجوان اس پہ غالب بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ بڑی کشمکش سے گزرتے ہیں اگر پیرنٹس کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں. پھر جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے والدین کی زندگی میں، بچوں سے وہ کہتے ہیں ٹر جائیں لیکن خود اسی وقت کہنا شروع کر دیتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آپ چلے جائیں، میں اگلی دفعہ چلے جاؤں گا. واپس آتے ہیں تو وہ درد ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کی بات ہے، کہیں پہ کوئی باہر ملنے کے لیے آ جاتا ہے، بچے کو جھوٹ بولنے کا کہا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سچ بولیں، لیکن خود ہی ان کو کہا جاتا ہے جا کے کہہ دیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ ہمارے بچوں کو بہت خراب کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو والدین گھر میں ماحول کریٹ کرتے ہیں اس کا بچے کی زندگی پہ اچھا اثر بھی ہوتا ہے، برا اثر بھی ہوتا ہے. پیرنٹس کو دعا کرتے دیکھیں گے، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دیکھیں گے، ان کی زندگی میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے باعث پیس دیکھیں گے، ایک اطمینان دیکھیں گے، ایک اعتماد دیکھیں گے اور خدا ان پہ بھروسہ ان کی زندگی میں دیکھیں گے، بچے متاثر ہوں گے. اور اگر نیگیٹو رویہ اپنے والدین کی زندگی میں دیکھتے ہیں یا بڑے بہن بھائیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، بری روشوں میں اپنے والدین کو، بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پیرنٹس سگریٹ پیتے ہیں بچے بھی پیتے ہیں. جہاں پہ پیرنٹس اس طرح کے کام نہیں کرتے بچوں میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں.
तो सर आपने बहुत खूब कहा कि हम अपने बड़ों से सीखते हैं, तो हमें अगर हमारे बड़े अच्छी तस्वीर हमारे सामने पेश करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो बच्चे भी उनसे अच्छे काम ही सीखेंगे। तो सर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वालिदैन के लिए नौजवान का रवैया कैसे होना चाहिए? ये तो हमने सीखा कि वालिदैन का रवैया अच्छा बच्चे के लिए होना चाहिए, तो बच्चों का रवैया अपने वालिदैन के लिए कैसा होना चाहिए? मैंने ये देखा है कि अगर माँ बाप आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चा भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। और कई दफ़ा तो वालिदैन ही, कई दफ़ा मामा वो अपने बच्चे को अपने उसके पापा के खिलाफ कर रही होती है। ये बड़े नेगेटिव बातें हैं जो बच्चों पे बुरे असरात डालती हैं, और फिर बच्चे ना सिर्फ पापा की इज़्ज़त नहीं करते, जब थोड़ी सी समझ आती है तो फिर मामा की भी इज़्ज़त नहीं कर पाते। लेकिन इस चेन को ब्रेक भी करना है। अब ये तो है कि पेरेंट्स ने क्या किया है, अब चाहें तो नौजवान जब उनको समझ आती है कि हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव रवैये हैं, दूसरे लोग भी उनको बताते हैं कि आपके ये रवैये अच्छे नहीं हैं, और उनको समझ आ रही होती है, अब चाहें तो वो इसी तरह से वक्त गुजार दें और अपने माँ बाप को दोष देते रहें, अपने माहौल को दोष देते रहें कि हमारे घर का माहौल ऐसा था, हमारे गिरदोनवा का माहौल ऐसा था, हमारी स्कूलिंग का माहौल ऐसा था, हमारे ख़ानदान का माहौल ऐसा था। या वो एक अच्छा फ़ैसला करके तो उस पर इरादा करके, अमल करके अपनी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं। और मैंने बहुत से नौजवानों को देखा है जिस माहौल में उन्होंने परवरिश पाई, उसके असरात उन नौजवानों की ज़िंदगी में ज़रा भी मुझे नज़र नहीं आते। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड ऐसी थी, इसके पेरेंट्स की बैकग्राउंड ऐसी थी। मैं कई ऐसे नौजवानों के बारे में बता सकता हूँ। इंटरनेशनली आप देख लें, बहुत से, एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जो भी मिलियनेयर हैं, जब वो कारोबारी तौर पर अपने आप को इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर चुके हैं, उनमें मेजॉरिटी आपको ऐसी नज़र आएगी जो बचपन में बहुत गुर्बत की हालत में थे। ऐसे है। और इसलिए एक शख्स कहता है अगर कोई गरीब पैदा होता है तो ये तो उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर कोई गरीब मरता है तो इसमें तो उसका कसूर है। मैं ये बात नहीं करूँगा कसूर वगैरह की, लेकिन ये एक मिसाल है। वो शख्स ये कहना चाहता है कि इस नौजवान के पास, किसी भी शख्स के पास एक चुनाव का मौका है कि वो अपने लिए अच्छे फैसले करे और मेहनत करे। इसी तरह से मैं रवैये के बारे में बात करना चाहूँगा। वालिदैन का रवैया बच्चे के साथ कैसा भी हो, ये बात तो वाज़ेह है कि वालिदैन अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं। वो इतना नहीं सीख सके कि हमें अपने बच्चे को कैसा माहौल देना है, लेकिन अब नौजवान के पास मौका है कि वो सीखे कि मुझे खुदा का कलाम क्या सिखाता है, कि मुझे अपने पेरेंट्स की किस तरह से इज़्ज़त करनी है। और खुदा के कलाम में यही एक वाहिद हुक्म है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरी उम्र उस ज़मीन पर जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो इसमें वादा भी है। ज़रूरी है कि नौजवान अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनका रवैया इनके साथ कैसा भी हो, उनके फ़ैसले नौजवान के लिए कैसे भी हों। वो अगर अच्छे फ़ैसले करेंगे तो अपने माहौल को बदल सकते हैं। और यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है। अगरचे भाई नफ़रत करते हैं और उसके बाद उसको एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है, वहाँ से उसको बेच दिया जाता है, पोतीफर के घर जाता है। बात यह है कि पोतीफर में घर में गया, माहौल तो बड़ा स्ट्रेसफुल होगा क्योंकि ये नया गुलाम जो इन्होंने ख़रीदा था, लेकिन ये अपने गिरदोनवा में एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर लेता है। जब खुदावंद की हुज़ूरी में जाता है, ये फैसला करता है कि मैंने अपनी गिरदोनवा के माहौल पर किस तरह से असरअंदाज होना है। नेगेटिव बातें आ रही होती हैं, इधर से पॉजिटिव बातें जा रही होती हैं, और खुदावंद सरफराजी देना शुरू करता है उसके घर में। जेल में चला गया, वहाँ पे भी दबाया जा रहा है, लेकिन इसका रवैया पॉजिटिव है। खुदावंद ने वहाँ पे भी सरफराज करना शुरू कर दिया। वहाँ से खुदावंद ने निकाला, खुदावंद ने इस मुल्क का हाकिम बना दिया। इसलिए कि इसका रवैया अच्छा था, ये खुदावंद के साथ फेथफुल था, ये गुनाह में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, ये जानता था कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। मैं कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ, वो ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ, अगर वो ना होता तो मैं इस मकाम पे ना पहुँचता। इसे जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, अगरचे वो बुरा भी हुआ है, खुदावंद आपकी भलाई के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है, चूँकि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदावंद को मौका दें नौजवान, और अपने ख़ानदान में वो अच्छा काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए उनके पास डेफिनेटली वो जैसे भी माहौल में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर एक क्वेश्चन टाइम की लिहाज से है कि जब हम अपने नौजवानों को, कुछ वालिदैन इतने एजुकेटेड है और अपने जो
दुनियावी वसाइल में बहुत बिजी हैं और वो ड्यूटीज़ पे जाते हैं और टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, और इसी तरह कुछ अनपढ़ हैं लेकिन उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो बाइबल की दर्स उन्हें दे सकें। आप बताएं कि हमें एज अ पेरेंट्स होते हुए अपने बच्चों को टाइम भी देना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ना टाइम देने की वजह से वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो बुरी आदत अपनाना शुरू कर देते हैं और बैड सोसाइटीज़ में बैठना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इंसान नेचुरली, चाहे बच्चा हो, चाहे वो लड़कपन में हो, चाहे नौजवान या बूढ़ा हो, अपनी शनाख्त चाहता है। यस। जब बच्चे को वक्त दिया जाए तो इससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है कि मुझे अच्छा माहौल मिल रहा है। और ज़रूरी है जो कुछ बच्चा बयान करना चाहे उसकी सुनी जाए। ज़रूर है बच्चे के साथ बातचीत की जाए। जब आप उसकी नहीं सुनते, आप उसको झिड़कते रहते हैं, उसे बात करने का मौका नहीं देते और उसके साथ गुफ्तगू नहीं हो पाती, तो इसके असरात बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत बुरे होते हैं और उसकी जो सलाहियतें हैं वो फिर उजागर नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चा हो या नौजवान हो, उसकी सुनी जाए। उसके साथ जब आप घर में कोई फ़ैसला करना है तो बच्चों को भी आप बता सकते हैं कि हम ये फ़ैसले करें। और जब बच्चे अभी लड़कपन में आ गए हैं तब भी बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ मिलके बातचीत की जाए। और मैं छोटी सी बात करूंगा, कुछ अर्सा पहले मैंने एक मोटर बाइक सेल करनी थी, मैंने वो सेल कर दी। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा आपने मोटरसाइकिल सेल कर दिया, आपने हमसे मशवरा नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे मशवरा करना चाहिए था। इसलिए कि वो चाहता है कि उसकी शनाख्त हो, उसे जाना जाए कि मैं ख़ानदान का फ़र्द हूँ, मैं अहम हूँ। ज़रूरी है कि बच्चों के साथ भी हम अपनी फ़ैमिली के बारे में बातचीत करें, मशवरा करें, उनको बताएं हम क्या करना चाहते हैं। जो लड़कपन में हैं उनको भी बताएं, नौजवानों को ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है उनको वक्त दें। अगर हम नौजवानों की नहीं सुनेंगे, कई दफ़ा वो इस तरह के हालात में होते हैं जब उनको बाहर मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना होता है। और अगर आप उनके साथ बैठ के लाइटली वक्त गुजारते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो वो अपने दिल की बात आपसे कर सकेंगे, आप उनको गाइड कर सकेंगे। बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स होते हैं, वो उनसे भी आपको आगाह कर सकेंगे कि उनकी लाइफ में किस तरह के मामले जारी हैं। और अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो वो किसी ना किसी को ढूंढ लेंगे जिससे वो बात करेंगे, और जो उसकी बात सुनेगा फिर वो उसी की बात को कबूल भी करेंगे, फॉलो भी उसी को करेंगे। अगर आप उसकी बात सुनेंगे, उसको वक्त देंगे, तो वो आपको फॉलो करेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। किस तरह से तरबियत कर, किस तरह से उसे वक्त दे। खुदा का कलाम ये सिखाता है इस्तिस्ना 6 बाब में कि तू बच्चे को सोते वक्त भी ये बातें जो खुदा के कलाम की मैं तेरे साथ कर रहा हूँ, खुदा कहता है तू ये सिखा। जब वो उठता है तब भी ये बातें तेरे पहले ये ज़हन नशीन रहे और तू फिर उसके ज़हन नशीन कर। पहले खुद हमने खुदा के कलाम की बातें सीखनी है, फिर उनके ज़हन नशीन करनी है। चलते फिरते इन बातों का लिखा है जिक्र कर। जब हम बच्चों को वक्त ही नहीं देते, हम खुदा के कलाम की बातें उनसे किस तरह से कर सकते हैं। जब हम उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो नहीं सुनते, तो खुदा के कलाम की बातें वो हमसे सुनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ वो कहना चाहते हैं हम वो उनसे सुने, और जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो फिर हम उनको सुना सकेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बहुत खूबसूरत पास्टर काशिफ चांद की गुफ्तगू से सुना और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि जो मसीही बहन भाई हमारे नौजवान सुन रहे हैं वो भी इन बातों को सीखें कि हमें किस तरह अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जानना है, और किस तरह पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, उनको जानना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जानें और उनको मसीह यस्सु में बढ़ने की जो है वो तालीम दे सकें। थैंक यू सो मच। आमीन।